Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 4, Tribals, Decus, and the Vision of a Golden Age. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 42 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे What happened to tribal chiefs? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? Before the arrival of British, in many areas, the tribal chiefs were important people. They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. In some places, they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. तो अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वह ज़मीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। Under British rule, the functions and powers of the tribal chiefs changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands. But they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. तो ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांव पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी, अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अब इसके बाद है व्हाट हैपन्स टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। पहले हमने पढ़ा कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अब व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स who moved about and did not have a fixed home. They wanted tribal groups. They wanted tribal groups to settle down and become peasant cultivators. तो ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो जहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. The British also wanted a regular revenue source for the state. So, they introduced land settlements, that is, they measured the land, defined the rights of each individual to that land, and fixed the revenue demand for the state. तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो जहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वह चाहते थे
कि आदिवासियों के समूह की एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रण करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए कि उन्होंने ज़मीन के लिए कुछ नियम बना दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना चाहिए। Some peasants were declared land owners, others tenants. As you have seen chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowners, who in turns paid revenue to the state. तो कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, लेसन नंबर 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। The British efforts to settle Jhum cultivators was not very successful. Settle plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. In fact, Jhum cultivators who took to plough cultivation often suffered, since their fields did not produce good yields. So the Jhum cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practice. Facing widespread protests, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. तो जूम काश्तवाड़ों को स्थायी रूप से बसने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होती, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले जूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के जूम काश्तवाड़ इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जितना आपने पढ़ा है आप उसकी रीडिंग एक बार फिर से करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कॉपी पे लिख के लर्न करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।